may believe that their guru can suspend the law of physics at whim, but skeptics are now questioning the evidence. This video of Sai Baba is now being circulated. Skeptics are now questioning the evidence. This video of Sai Baba is now being circulated secretly in India. Video of Sai Baba is now being circulated secretly in India. This video of Sai Baba is now being circulated secretly in India. Video of Sai Baba is now being circulated secretly in India. Baba is now being circulated secretly in India. It appears now being circulated secretly in India. It appears to show is now being circulated secretly in India. It appears to be being circulated secretly in India. It appears to show the God-man you circulated secretly in India. It appears to show the is now being circulated secretly in India. It appears to show the God-man you Sai Baba is now being circulated secretly in India. It appears to show the God-man using a stage magician's trick to produce a gold necklace for a distinguished guest. Just before he hands over an award, his fingers seem to be searching for something underneath the wooden box. He then draws searching for something underneath the wooden box. He then seems to be searching for something underneath the wooden box. He then draws back his hand, waves it around, and the necklace appears something underneath the wooden box. He then draws back his hand, the wooden box. He then draws back his hand, waves it around, and the necklace appears as if from thin air. The event was witnessed by India's Prime Minister and recorded by the state-controlled Indian television network. But after an editor and recorded by the state-controlled Indian television network. The event was witnessed by India's Prime Minister and recorded by the state-controlled Indian television network. Witnessed by India's Prime Minister and recorded by the state-controlled Indian television network. India's Prime Minister and recorded by the state-controlled Indian television network. But after an editor drew attention to the apparent trickery, this footage was not broadcast. दशहरे का दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंदिर गए। दशहरा मतलब वो दिन जब भगवान राम ने रावण को मारा था। राम की बात सुनकर ध्यान इसलिए भी खिंच जाता है क्योंकि कल ही संघ के मुखिया मोहन भागवत ने राम मंदिर की बात की थी। कहा था राम मंदिर बनाने के लिए सरकार कानून लाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किसी राम मंदिर नहीं गए थे। ये वो समय है जब उद्धव ठाकरे उन्हें उल्हाना दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप चीन जाते हैं, जापान जाते हैं, उन देशों में भी जाते हैं जिनका नाम हमने नहीं सुना, भूगोल की किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन अयोध्या को कैसे भूल जाते हैं। इन तमाम राजनीतिक सवालों और सुझावों के बीच नरेंद्र मोदी शिरडी गए थे। साईं बाबा के मंदिर पहुंचे, वहां पूजा भी की। आज की बड़ी खबर में बात करेंगे शिरडी की, साईं बाबा की, और ये बताएंगे कि कैसे शिरडी के रास्ते साईं भक्तों को और साईं भक्तों के रास्ते 2019 के चुनावों को साधने चले हैं नरेंद्र मोदी। सबसे पहला सवाल, आज शिरडी क्यों गए थे प्रधानमंत्री? 100 साल पहले दशहरे के ही दिन 1918 में शिरडी के साईं बाबा ने समाधि ली थी। आज 100 साल हुए तो इस मौके पर वहां बड़ा कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री भी पहुंचे, आरती में शामिल हुए, विजिटर बुक में अपने विचार लिखे और साईं बाबा की याद में एक चांदी का सिक्का भी जारी किया। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव भी उनके साथ थे। अब साईं बाबा के बारे में क्या क्या बोले प्रधानमंत्री? बोले, मैं जब भी साईं बाबा के दर्शन करता हूं तो मुझे भी जनसेवा के लिए खुद को समर्पित करने का नया उत्साह मिलता है। कहा कि शिरडी के कण कण में साईं के मंत्र उनकी सीख है। जनसेवा, त्याग और तपस्या की जब बात आती है तो शिरडी का उदाहरण दिया जाता है। नंबर 3, साईं का मंत्र है सबका मालिक एक है। साईं के ये 4 शब्द समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। सिर्फ मंदिर ही नहीं गए थे प्रधानमंत्री, कुछ और भी किया। क्या किया बताते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के कई लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी, उनसे बात भी की, एक रैली को संबोधित किया। रैली में पिछली सरकार पर निशाना भी साधा। कहा, हमने 4 साल के कार्यकाल में 1 करोड़ 25 लाख घर बनाए हैं। पिछली सरकार होती तो इतने घर बनाने में 20 साल लग जाते।
इतना ही नहीं, शिरडी में कई नए कंस्ट्रक्शन का भूमि पूजन किया, जिनमें 169 करोड़ रुपए की एक एजुकेशन बिल्डिंग, प्लानिटेरियम, वैक्स म्यूजियम, साईं गार्डन और थीम पार्क भी है। अब शिरडी के जरिए साईं भक्तों को साधना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। हर पॉलिटिकल पार्टी ये करती है कि खुद को जातियों, धर्मों या समुदाय का हितैषी दिखाना चाहती है। ये काम भाजपा और प्रधानमंत्री भी करते हैं, फिर चाहे वो शिया मुसलमानों से करीबी बढ़ाने के प्रयास हो या इंदौर में बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में पहुंच जाना हो। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा पहुंचे थे। रोहतक जिले में किसान नेता सर छोटू राम की 64 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। इस मौके पर पीएमओ के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया, जिसमें सर छोटू राम को जाटों का मसीहा लिख दिया गया था। इस ट्वीट की इतनी आलोचना हुई कि बाद में पीएमओ को यह ट्वीट हटाना पड़ गया। लेकिन यह जीता जागता उदाहरण है कि समुदायों को हर तरीके से साधने की कोशिश होती है, लेकिन साईं भक्तों का ना कोई धर्म है ना कोई संगठन, फिर भी प्रधानमंत्री का ध्यान उन पर है और वजह है उनकी पहुंच। एक तो साईं बाबा को पूजने वाले हर धर्म में हैं। अगर एक नेता साईं मंदिर जाता है तो वो जरूर साईं भक्तों की नजर में चढ़ेगा। जरा याद करके देखिए, हाल फिलहाल का कौन सा प्रधानमंत्री आपको याद आता है जो प्रधानमंत्री रहते हुए शिरडी गया हो? पहली बार साईं मंदिर नहीं गए हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी यह काम तब से कर रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वो 2008 में शिरडी के साईं मंदिर गए थे। देश के बहुत से जिलों में पिछले कुछ सालों में साईं बाबा के नए मंदिर बने हैं। फिल्मों और टीवी सीरियल्स ने साईं महिमा जैसी बातों को घर घर पहुंचाया है और साईं बाबा के भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ है। हर गुरुवार साईं मंदिरों में भंडारा होता है। हर वर्ग के लोग उसमें जुटते हैं और साईं उनकी आस्था का केंद्र बनते हैं। भक्तों की आस्था साईं के चमत्कारों में है। कुछ ही समय में अगर साईं बाबा इतने प्रसिद्ध हुए हैं तो इसका एक सीधा सा कारण है, चमत्कार। तमाम टीवी सीरियल्स भी साईं बाबा के चमत्कार दिखाते ही नजर आते हैं और भक्त भी आपको ऐसे ही नजर आएंगे। उनके पास किस्से होंगे कि कैसे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, डेंट पड़ा और उसमें साईं बाबा का चेहरा नजर आने लगा। या ऐसे किस्से होंगे कि बिजनेस में नुकसान हो रहा था, साईं मंदिर गए, गोद में फूल आकर गिरा, उसे तिजोरी में रख दिया और उसी दिन से फायदा शुरू हो गया। धार्मिक जनता के लिए साईं का मतलब इंस्टेंट रिजल्ट। जिनकी मूर्ति पर हिंदू फूल चढ़ाते हैं तो मुसलमान उनकी समाधि पर चादर चढ़ाते हैं। भक्तों का दावा है कि वो मुरादें पूरी करते हैं। यही कारण है कि साईं मंदिरों की दीवारों पर भक्त उंगलियों से अपनी मुरादें लिखते मिल जाएंगे। लेकिन लोग साईं बाबा का विरोध भी करते हैं। जून 2014 शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि साईं बाबा भगवान नहीं है, उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साईं को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पूजा को बढ़ावा देना हिंदू धर्म को बांटने की साजिश है। अप्रैल 2016 में वो फिर बोले, कहा महाराष्ट्र में सूखे के लिए साईं बाबा जिम्मेदार हैं, उनकी पूजा बंद करनी चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आए दिन साईं बाबा का विरोध होता रहता है। लोग उन्हें हिंदुत्व के खिलाफ बताते हैं। उन्हें शिकायत है कि साईं बाबा को इतना चढ़ावा चढ़ता है, वो मंदिरों में आना चाहिए। ये कहा जाता है कि वो सिर पर मुस्लिम फकीरों की तरह कफन क्यों बांधते हैं। ये दावा भी आता है कि उन्होंने कभी सबका मालिक एक है नहीं कहा, हमेशा अल्लाह मालिक है कहा। साईं बाबा के मस्जिद में रुकने पर भी सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन इस सबसे इतर प्रधानमंत्री शिरडी पहुंचते हैं, पूजा करते हैं, सिक्का जारी करते हैं, ये जानते हुए कि वो इंसान ही थे। अब से 100 साल पहले ही धरती पर थे। प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना एक तरह से उन्हें मान्यता देना है। ये बात साईं बाबा के भक्तों को पसंद आएगी और साईं बाबा के भक्तों को खुश करने के प्रयास आज पहली बार नहीं हुए हैं। शुरुआत तभी हो गई थी जब 1 साल पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 अक्टूबर 2017 को शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया था। उसके बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिसंबर 2017 में वैश्विक साईं मंदिर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। साईं बाबा के भक्तों में बातें एक छोटी सी फुसफुसाहट से फैलती हैं। आपको 15-20 साल पहले साईं बाबा के नाम पर आने वाले कागज के पर्चे तो याद ही होंगे। और अब दौर व्हाट्सएप का है। वहां से वायरल हुआ एक मैसेज भी चुनाव के समय काफी कुछ बदल सकता है। साईं बाबा से जुड़े 2 शब्द आपने अक्सर सुने होंगे, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा मतलब आस्था और सबूरी मतलब सब्र, संयम। वो सब्र रखने का उपदेश देते थे, लेकिन एक जगह यही सब्र नजर नहीं आ रहा, सबरीमाला में, जहां महिला श्रद्धालुओं को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा।
आज तीसरे दिन भी हिंदू संगठन महिलाओं को मंदिर जाने से रोकते रहे। तनाव बना हुआ है। भारी सुरक्षा के बीच 2 महिलाओं को हेलमेट पहने पुलिस वाले मंदिर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, महिलाओं को लौटना पड़ा। अब कौन थी ये 2 महिलाएं? पत्रकार कविता जक्कल और सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा। ये मंदिर तक पहुंची लेकिन 500 मीटर दूर से लौटना पड़ा। अगर ये 500 मीटर की दूरी तय कर ली जाती तो आज एक इतिहास बन जाता। इन महिलाओं के साथ 150 पुलिस के जवान साथ में थे। इन जवानों का नेतृत्व खुद आईजी श्रीजीत कर रहे थे, लेकिन फिर भी महिलाएं अंदर नहीं जा सकी क्योंकि पुजारी ने कह दिया था कि अगर ये महिलाएं अंदर लाई गई तो मंदिर में ताला लगा देंगे। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मंदिर श्रद्धालुओं के लिए है, एक्टिविस्ट के लिए नहीं।